Welcome back, students. Welcome back to our another online lecture session. We have started our new chapter, that is metabolic regulations. We have discussed our first point of this chapter, that is enzyme compartmentalization at cellular level. Okay. In this video, we are going to discuss about the allosteric enzyme with example. Okay, what are allosteric enzyme? Before starting our actual point, that is allosteric enzyme, first let me revise about our first point, that is enzyme compartmentalization at cellular level. In this point, we have discussed that our enzymes are fixed, or they are localized into the compartment, and this compartment are the organelles present into the cell. Okay, then it may be any organelle like Golgi complex, mitochondria, lysosome, cytosol, etc, etc. Okay, so these are the compartment in which your enzyme is being localized, and into that organelle certain pathways, certain metabolic pathways are carried out, like glycolysis, TCA cycle, etc, oxidative phosphorylation, your all metabolic reactions. Okay, now it is necessary to regulate these reactions. योर चैप्टर नेम इज ओनली मेटाबॉलिक रेगुलेशन. तो एक बार रिएक्शंस आपके कंपार्टमेंट में, ऑर्गेनल्स में कैरी आउट होते हैं, तो उसे रेगुलेट करना, उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, ओवर प्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट गुड एंड लेस प्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट गुड. द प्रोडक्शन मस्ट बी इन अ स्टेबल फॉर्म, द रिएक्शन मस्ट कैरी आउट इन अ स्टेबल फॉर्म, isn't it? So it is necessary to regulate all these metabolic pathways or all these metabolic reactions. So how these reactions are being regulated, that we are going to see in our further points. In that, your first point is allosteric enzyme. Now, what are allosteric enzyme? Up till now you have just studied enzyme. What are the enzyme? Enzymes are the we can say these are the proteins which enhance the rate of the reactions. Okay, so up till now you have discussed, you are known to just this part and certain features of the enzyme. Now what is this new point, that is allosteric enzyme? Now see, if we will see the general structure of enzyme contains the active site. उसी एक्टिव साइट को बोलते हैं कैटालाइटिक साइट. ठीक है, जहां पर आपका सबस्ट्रेट बाइंड होगा एंड अल्टीमेटली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. Okay, this is the general reaction up till now you have studied. What is new in allosteric enzyme? See, allosteric enzyme में नया ये है कि उसमें allosteric site present होती है. बस मतलब क्या, आपका एंजाइम है, उस एंजाइम में आपकी एक्टिव साइट है जिसको आप कैटालिटिक साइट भी बोलते हो, और उसी एंजाइम के स्ट्रक्चर में एलोस्टेरिक साइट भी प्रेजेंट होती है. ठीक है, वही एंजाइम और उसी स्ट्रक्चर में योर वी कैन से एलोस्टेरिक साइट इज ऑल्सो बीन प्रेजेंट. So let's see what is that. I'll show you diagram in further slides. Now allosteric enzymes, these are regulatory enzyme. इसको आप regulatory enzymes भी बोल सकते हैं. Okay, these are the regulatory enzyme. If we will split the word allosteric, तो allo, A-double-L-O, allo का मतलब होता है other, second, दूसरा. Okay, that is the meaning of the allo. And steric, that is STERIC, स्टेरिक का मतलब होता है शेप, यानी कि क्या, अलग शेप. उसी एंजाइम में अलग शेप बना होता है जहां पर आपका सबस्ट्रेट नहीं बाइंड होता, जहां पर आपका मॉड्यूलेटर बाइंड होता है. मॉड्यूलेटर को ही दूसरा वर्ड है इफेक्टर. जैसे एक्टिव साइट को दूसरा वर्ड है कैटालिटिक साइट, वैसे ही एलोस्टेरिक साइट को आप बोलते हैं मॉड्यूलेटर या फिर इफेक्टर. गेटिंग माय पॉइंट? उसी एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक एक्टिव साइट प्रेजेंट है और एक एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट है. एलोस्टेरिक साइट को ही बोलते हैं मॉड्यूलेटर या इफेक्टर.
अभी मॉड्यूलेटर ये दो टाइप्स के होते हैं, मॉड्यूलेटर और इफेक्टर ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव मॉड्यूलेटर एंड अदर वन इज निगेटिव मॉड्यूलेटर। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पॉजिटिव मॉड्यूलेटर एंड निगेटिव मॉड्यूलेटर? अगर हम पहले निगेटिव की बात करें तो निगेटिव मॉड्यूलेटर इज डिफाइंड एज द निगेटिव मॉड्यूलेटर इज डिफाइंड एज इनहिबिटर। मतलब क्या? अगर नाउ यू कैन सी द डायग्राम, निगेटिव मॉड्यूलेटर मीन्स इनहिबिटर होता है। अगर उस एलोस्टेरिक साइट में या फिर उस मॉड्यूलेटर साइट में या फिर उस इफेक्टर साइट में अगर इनहिबिटर बाइंड होगा तो फिर क्या होगा? द रिएक्शन इज बीन नॉट कैरिड आउट, मीन सबस्ट्रेट विल नॉट बी एबल टू बाइंड। हालांकि सबस्ट्रेट की साइट अलग है, लेकिन एक बार इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट में बाइंड हो गया तो देर इज नो चांसेस टू बाइंड टू द सबस्ट्रेट and means there is no chance of substrate binding to the active site of the enzyme, and there will be no product formation. But if that is known as the negative inhibitor, okay, or we can say negative modulator, मतलब वो इनिबिट करता है। ऑपोजिट इज द केस ऑफ द पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर ये स्टिमुलेटर की तरह काम करता है, मतलब एक बार एलोस्टेरिक साइट में पॉजिटिव स्टिमुलेटर बाइंड हो गया, फिर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर बाइंड हो गया, पॉजिटिव इफेक्टर बाइंड हो गया, तो फिर उसी एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट बाइंड होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ हियर इज द जो मैंने आपको थियोरिटिकली अभी बताया है पॉजिटिव और निगेटिव, वही यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है एलोस्टेरिक एंजाइम की। देखिए, यू कैन सी द डायग्राम in green color shape. The simple structure of enzyme is been shown, which consists of the active site, which is also known as the catalytic site. Enzymes are the protein, so protein has been the name protein has been given. Okay, so that enzyme, it contains the active site, और दूसरी सेकेंड साइड है उसी एंजाइम के स्ट्रक्चर में, सेकेंड साइड है आपकी एलोस्टेरिक साइट, जिसको आप क्या बोलते हैं? इफेक्टर बोलते हैं या फिर मॉड्यूलेटर बोलते हैं, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? द फर्स्ट ग्रीन कलर डायग्राम एंजाइम की एक्टिव साइट दिखाई है और एलोस्टेरिक साइट दिखाई है। उसके बाद देयर इज अटैचमेंट ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल, दैट इज योर मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलेटर या फिर इफेक्टर ये आपके दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो हम पहले आप देखेंगे पॉजिटिव इफेक्टर या फिर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। अब उस एक्टिव साइट में देखिए एंजाइम दिखाया गया है, अब पॉजिटिव मॉड्यूलेटर बाइंड हो चुका है। कहाँ बाइंड होगा? उसकी जगह स्पेसिफिक है, वो कैटालिटिक साइट में बाइंड नहीं होगा, उसकी एलोस्टेरिक साइट खुद की बनी हुई है, ओके, तो वो एलोस्टेरिक साइट में बाइंड होगा। वंस दिस पॉजिटिव मॉड्यूलेटर इज बीन बाइंडेड टू द एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम, तब क्या होगा? एक्टिव साइट और या फिर कैटालिटिक साइट में सबस्ट्रेट बाइंड होगा। रेड कलर में जो दिखाया है वो आपका सबस्ट्रेट है, ओके, सबस्ट्रेट बाइंड होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन ऑपोजिट इज द केस विद द निगेटिव इफेक्टर। सेम एंजाइम इज देयर, सेम एक्टिव साइट इज देयर, बट योर मॉड्यूलेटर और इफेक्टर इज बीन डिफरेंट, ओके। अगर निगेटिव इफेक्टर बाइंड होता है तो सबस्ट्रेट कि जो बाइंड करने की एबिलिटी होती है एक्टिव साइट में वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है या फिर नेग्लिजेबल हो जाती है एंड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन दिस वी कैन से पॉजिटिव मॉड्यूलेटर और निगेटिव मॉड्यूलेटर। अब मैं आपको बता दूं ये पॉजिटिव जो एलोस्टेरिक एंजाइम ये जो कंसेप्ट है, इट इज रिलेटेड टू योर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फीडबैक इनहिबिशन। How it is related to the feedback inhibition, that also I am going to tell you when we will see the point feedback inhibition. But let me give you some idea how it is related to your next point, that is feedback inhibition. Let's see the next slide. मैं पहले आपको example बता दूँ allosteric enzyme का। नाउ बिफोर एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे कि देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेटर और देर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्टर, पॉजिटिव एंड निगेटिव। निगेटिव को आप इनहिबिटर बोलेंगे क्योंकि वो इनहिबिट करता है, और पॉजिटिव को आप स्टिमुलेटर बोलेंगे क्योंकि वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन का, ओके।
अभी दो टाइप्स और है एलोस्टेरिक एंजाइम्स के. देयर आर ऑल्सो द टू टाइप्स, दैट इज होमोट्रॉपिक and heterotropic. It has not been mentioned in the slide, so just listen it. Homotropic and heterotropic. See, पहले हम homotropic देखेंगे. The name itself indicate homo means what? Same, right? Same is there. तो यहाँ पर same क्या है? यहाँ पर same आपका substrate और modulator है. Okay, substrate and modulator are same. That is known as the homotropic. Getting my point? मतलब यहाँ पर आपका जो modulator है उसका जो स्ट्रक्चर होगा या फिर उसकी एक्टिविटी जो होगी इट विल बी सेम एज दैट ऑफ द सबस्ट्रेट. दैट इज नोन एज द होमोट्रॉपिक. एंड व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक? हियर योर मॉड्यूलेटर और इफेक्टर इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सबस्ट्रेट. ओके, तो वो मॉड्यूलेटर कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है. ओके, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सबस्ट्रेट. सो दैट इज नोन एज द हेटेरोट्रॉपिक वी कैन से हेटेरोट्रॉपिक एलोस्टेरिक एंजाइम. अब मैंने आपको पहले होमोट्रॉपिक बताया था. होमोट्रॉपिक मतलब यहाँ पर सबस्ट्रेट और मॉड्यूलेटर क्या होगा, सेम, मतलब उनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होगी या फिर उनके फंक्शन में कोई सिमिलैरिटी होगी डिपेंडिंग ऑन दी एग्जाम्पल. अगर मैं आपको होमोट्रॉपिक का एग्जाम्पल बताऊँ तो द वेल नोन एग्जाम्पल इज देयर ऑक्सीजन binding to the hemoglobin. Okay, what is the function of that hemoglobin? It will carry oxygen to different parts of the body. So this is well known example. यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, ये अगर आप सबस्ट्रेट और मॉड्यूलेटर की तरह कंपेयर करेंगे तो फिर दोनों का फंक्शन तो एक ही है. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड होगा और फिर वो बाकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो इट विल बी ट्रांसपोर्टेड. ओके, सो यहाँ पर अगर आप दोनों को किसी को भी आप सबस्ट्रेट कंसीडर कीजिए, किसी को भी मॉड्यूलेटर कंसीडर कीजिए, दोनों का काम तो एक ही है, दोनों का स्ट्रक्चर तो सिमिलर है, दोनों का फंक्शन तो सिमिलर है. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ होमोट्रॉपिक एलोस्टेरिक एंजाइम. एंड इफ यू विल सी द हेटेरोट्रॉपिक, यहाँ पर क्या है, स्टिमुलेटर मॉड्यूलेटर या इफेक्टर ये डिफरेंट है सबस्ट्रेट से. इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल आता है फीडबैक इनहिबिशन. जैसे मैंने आपको कहा था कि एलोस्टेरिक एंजाइम ये आपके आगे के पॉइंट फीडबैक इनहिबिशन से रिलेटेड है. तो कैसे रिलेटेड है? एलोस्टेरिक एंजाइम के ही दो टाइप्स है, होमोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक. होमोट्रॉपिक का तो एग्जाम्पल हमने देख लिया, इजंट इट? हेटेरोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है फीडबैक इनहिबिशन. तो आप अगर हेटेरोट्रॉपिक के एग्जाम्पल में कुछ लिखना चाहेंगे तो आप फीडबैक इनहिबिशन का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं. मैं आपको जनरल आइडिया दे देती हूँ कि क्या है फीडबैक इनहिबिशन. जब हम आगे का लेक्चर देखेंगे जो फीडबैक इनहिबिशन का होगा उसमें आपका और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि क्या है फीडबैक इनहिबिशन. ओके, अभी फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन दिस स्लाइड दैट व्हाट इज फीडबैक इनहिबिशन. यस, लास्टली द पॉइंट इज बीन इंक्लूडेड कि फीडबैक इनहिबिशन क्या है. ठीक है, मैं आपको बता दूं. अब फीडबैक इनहिबिशन ऐसा है कि यहाँ पर जो आपका लास्ट में प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना, वही प्रोडक्ट अपने आप को कम करने के लिए कोई भी सबस्ट्रेट या कोई भी एंजाइम को इनहिबिट करता है. ओके, दैट इज द फीडबैक इनहिबिशन. मीन्स व्हाट, इफ योर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, अभी ए ये रिएक्टेंट है, ओके, A is been converted into the B. B is your product. लेकिन B का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो वो खुद प्रोडक्ट क्या करेगा, अपना कॉन्सेंट्रेशन कम करने की कोशिश करेगा. कैसे करेगा? वो एक तो डायरेक्टली सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा या फिर एंजाइम पर अटैक करेगा, ठीक है, सो दैट उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए. दैट इज द फीडबैक इनहिबिशन. फीडबैक देखिए उसका वर्ड में ही मीनिंग छुपा हुआ है. फीडबैक, इट्स गोइंग अगेन बैक टू कंट्रोल इट्स प्रोडक्शन. ओवर प्रोडक्शन हुआ तो भी वो कंट्रोल करेगा, अगर कम प्रोडक्शन लग रहा है तो भी वो उसका प्रोडक्शन खुद का इंक्रीज करेगा. तो वो सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ रेगुलेटर है. दैट इज द फीडबैक इनहिबिशन. गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोट्रॉपिक. हेटेरोट्रॉपिक वी कैन से एलोस्टेरिक एंजाइम. When we will see our actual point feedback inhibition, तब आपका concept और क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर हम एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में डिस्कस करें. इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस फीडबैक इनहिबिशन, इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम. We'll come back again to the example of allosteric enzyme.
तो एग्जाम्पल ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम इज aspartate transcarbamylase. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम. इसको ही आप बोल सकते हैं ATC. ओके, ATC दैट इज aspartate transcarbamylase, ATCase. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन है. ये किस लिए इन्वॉल्व है, ये एंजाइम इन्वॉल्व है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताती हूँ, इसको बोलते हैं ATCase. ATCase मीन्स aspartate transcarbamylase. सो दिस ATCase इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ cytidine triphosphate, दैट इज CTP. ओके, cytidine triphosphate. साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट क्या है, तो साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विच इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योर न्यूक्लिक एसिड लाइक DNA एंड RNA. ओके, तो साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट ये किससे बना है, बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम ATCase. ओके, सो ये इसके बहुत सारे सीरीज, बहुत सारे वी कैन से इंटरमीडिएट रिएक्शन से और फिर जाकर आपका बनता है CTP, दैट इज सिटिडीन ट्राइफॉस्फेट. अभी यहाँ पर CTP ये इट रेगुलेट द ATCase इन निगेटिव मैनर. यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट लिखा है दैट CTP रेगुलेट्स ATCase इन द निगेटिव मैनर. इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर CTP प्रेजेंट होगा, दैट इज सिटिडीन ट्राइफॉस्फेट, जो आपको ये आपका प्रोडक्ट है. ओके, सिटिडीन ट्राइफॉस्फेट क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है. अब देखिए यहाँ पर फीडबैक इनिबिशन की कंसेप्ट आ गई है. सिटिडीन ट्राइफॉस्फेट इज योर प्रोडक्ट. Okay, it has been synthesized by the enzyme aspartate transcarbamylase, that is ATCase. Now here it has been said that CTP regulate ATCase in negative manner. मतलब क्या है, मीन्स अगर CTP प्रेजेंट होगा, ऑलरेडी CTP इज बीन सिंथेसाइज्ड और ATCase भी इन्वॉल्व है. ATCase तो CTP की प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, लेकिन CTP ऑलरेडी जितने अमाउंट में चाहिए उतने अमाउंट में ऑलरेडी वो प्रेजेंट है. तो यहाँ पर ये जो CTP है क्या होगा, इट विल गिव सिग्नल टू दी ATCase एंजाइम दैट इज इन द निगेटिव मैनर, मीन्स इनिबिट, अभी तो स्टॉप हो जा, मेरा प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत हो चुका है, नाउ इट्स नॉट बीन नेसेसरी, सो यू हैव टू स्टॉप नाउ. ऐसे कौन देगा सिग्नल, योर CTP विल गिव. दिस इज नोन एज द निगेटिव, वी कैन से निगेटिव इनहिबिशन और वी कैन से निगेटिव मॉड्यूलेटर. ठीक है, यहाँ पर CTP फीडबैक सिग्नल देगा टू द एंजाइम ATCase कि अब आप आपका प्रोडक्शन रोको, आपकी एक्टिविटी रोको, मेरा प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जितना चाहिए था उतना हो चुका है. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द एलोस्टेरिक एंजाइम. Okay, which is very simple. There is no need to make more since the product of the reaction is controlling the activity that you can read. Okay, so यही एक concept है जो मुझे आपको बतानी थी. अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, ये समरी डायग्राम है. यहाँ पर if you will see the diagram in a very we can say in a zoom manner, तो आप देखिए यहाँ पर डायग्राम में क्या है, जो स्क्वायर शेप में दिखाया गया है इट इज द पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर. मतलब क्या होगा, यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होगा, पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर है. जो ट्रायंगल शेप में बताया है दैट ट्रायंगल शेप इंडिकेट्स दैट सबस्ट्रेट, और जो सर्कुलर शेप में बताया है इट इज द निगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर, मीन्स वहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा. लेट्स सी दिस रिसाइकलिंग डायग्राम. इसको आप रिसाइकलिंग डायग्राम नहीं बोल सकते, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस आप इसे बोल सकते हैं. पहली डायग्राम अगर हम देखेंगे तो उस पहली डायग्राम में कंसीडर दैट इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, डेफिनेटली इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एलोस्टेरिक एंजाइम. तो उस एलोस्टेरिक एंजाइम के स्ट्रक्चर में क्या दिखाया गया है, एक्टिव साइट दिखाई गई है, या फिर आप उसको कैटालिटिक साइट भी बोल सकते हैं, और दूसरा एक्टिवेटर साइट या फिर एलोस्टेरिक साइट दिखाई गई है. कैटालिटिक साइट में डेफिनेटली आपका सबस्ट्रेट बाइंड होगा और एलोस्टेरिक साइट में आपका मॉड्यूलेटर बाइंड होगा. मॉड्यूलेटर कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव. ओके, तो हर डायग्राम में हर डायग्राम में आपकी साइट्स दिखाई है. तो पहली अगर आप देखेंगे, अगर पहले में सिर्फ दिखाया है स्क्वायर शेप, इट इंडिकेट्स दैट पॉजिटिव इफेक्टर इज देयर. ओके, सी डाउन साइड डायग्राम आप देखिए, पॉजिटिव इफेक्टर ये बाइंड हो चुका है एलोस्टेरिक साइट या फिर एक्टिवेटर साइट में. ठीक है, एक बार वो एक्टिवेटर साइट में बाइंड हो गया तो डेफिनेटली सबस्ट्रेट भी बाइंड होगा.
Okay, substrate will also bind because positive effector is been binded, so that is activated, we can say activated enzyme, क्योंकि वहां पर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा. अगर आप सेकेंड डायग्राम में देखेंगे, सर्कुलर शेप में दिखाया है, सर्कुलर शेप दैट इज द निगेटिव इफेक्टर. अभी पॉजिटिव इफेक्टर दैट इज बिन एक्टिवेटेड, अगर निगेटिव इफेक्टर बाइंड होगा तो देखिए क्रॉस दिखाया गया है सेकेंड डायग्राम में. इनएक्टिव मीन सबस्ट्रेट विल नॉट बाइंड. Okay, when substrate will not, why substrate will not bind? Because inhibitor is already binded to the activator site or binded to the allosteric site. फिर मतलब वो कैटालिटिक साइट ऐसी ही एम्प्टी रहेगी. गेटिंग माई पॉइंट? कैटालिटिक साइट ऐसी ही एम्प्टी रहेगी, सिर्फ इनहिबिटर के बाइंड होने के वजह से वहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा और देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. इतनी सिंपल डायग्राम है. जस्ट आपको डायग्राम का एक ही कंक्लूजन निकलता है कि अगर एक्टिवेटर साइट या फिर एलोस्टेरिक साइट में पॉजिटिव इफेक्टर बाइंड हुआ तो देयर विल बी एक्टिवेटेड और देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. एंड अगर इनहिबिटर बाइंड हुआ तो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज सबस्ट्रेट इज नॉट बाइंडेड टू द कैटालिटिक साइट. सो दैट्स इट. यही ये डायग्राम इंडिकेट करती है. ठीक है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द एलोस्टेरिक एंजाइम. थैंक यू.